गुड इवनिंग दोस्तों। हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही हैं कि पिछले 2 संडे से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो सीरीज़ है ये मैं छोटे बैंकों के लिए कर रहा हूँ, बड़े बैंकों के लिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास सेटअप है। लेकिन जो टायर 1 और 2 की बैंक्स हैं उनको वैसे रिज़र्व बैंक ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन risk management is a critical functionality which the urban cooperative banks are not paying attention to. हालांकि मैंने ये भी कहा है कि urban cooperative banks per se are doing risk practices without getting into the documentation of it. तो मेरा ये मानना है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोग टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल ये अगर चीज़ें जानते हैं तो छोटी बैंक भी क्यों ना हो वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सक्षम हो सकती है। और जब हम लोगों के पैसे का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी यूज पब्लिक मनी, वी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। रिस्क मैनेजमेंट, द आइडिया इज दैट the basic funda of risk management is that when you are utilizing someone else's money, you must have proper set of practices how you will do the banking business. Banking is basically risk taking. So far as risk management or risk taking is concerned, it is in our genes. The only thing that I find missing is that we have not documented the good practices which we have been conducting for all these years. I'm going to help you in drawing proper documentation for risk management, and therefore this initial couple of Sundays I'll be talking about the theoretical aspects and then the practical aspects of the risk management, and of course uh, how to identify the risk, how to measure the risk, how to mitigate that, how to draw a policy, what should be the structure. All those things would be covered by me, and including all types of risk, major 5 6 risks, and the subset of risk which in each of the risk that we normally know about. I'll also talk about little technical on the treasury risk. When I handle treasury risk, I'll be talking about the value at risk and earnings at risk, all those concepts which the Reserve Bank of India is asking the urban cooperative banks to intimate them as to what are your policies. सो आज हम लोग दो ही कंसेप्ट पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि टीजर में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने तुम्हारे चीफ रिस्क ऑफिसर का क्या रोल होगा, या रिस्क मैनेजमेंट कंसेप्ट का महत्व क्या है। आपके बैंक में कोई भी बंदा होगा, उसको आप सीआरओ मत कहो, फिर भी उसको रिस्क के बारे में पूरी बैंक की पढ़ाई करने दो। आइडेंटिफाई वन सीनियर बैंकर who understands the banking in your bank, whatever be the size of your bank, and you can draw a small policy at the end of the entire series. The series will run for at least 10 to 12 Sundays is what I believe, depending upon the time slots which are available. I'll not be making it huge videos on this. 15-20 मिनट के ऊपर वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि पेशेंस खत्म हो जाता है। अगर ये 10-15 मिनट में आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, so each subsequent video the things will keep on improving in terms of the knowledge, in terms of the application of risk management practices and so forth and so forth. तो आज मैं दो चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में ये बड़ी बैंकें और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बात करती है। एक उसमें कंसेप्ट ऐसा है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्क आर्किटेक्चर। बहुत बड़े शब्द है दोस्तों। मैं बताऊं, ये शब्द सिर्फ नाम में ही बड़े हैं, असल में बड़े नहीं है ये शब्द। रिस्क ऑर्गेनाइजेशन और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर apparently appears to be bombastic words, but in reality they are not. There are simple steps which if I tell you, you will understand that risk management structure or risk organization or risk architecture कोई कठिन काम नहीं है, कोई कठिन काम नहीं, बिल्कुल आसान है। आप जानते हैं बैसल 1, बैसल 2, बैसल 3। टिपिकली बैसल 1, आप कभी भी बैसल 1 का उनका पहला रिपोर्ट पढ़िए, और उन्होंने उसमें ये कहा है कि एज फार एज रिस्क मैनेजमेंट इज कंसर्न, द डिसीजन मेकिंग शुड बी in the committee form of organization. This is what 4 decades ago.
Urban cooperative banks में the committee form of organization is the basic method in which the banking is being done. So we are all aware of committee form of organization. In a lighter vein, committee form of organization क्या होता है? सब इकट्ठा जिम्मेवार, किसी एक की जिम्मेवारी नहीं. So they are all collectively responsible, individually not. So the things are changing. This is in lighter vein. But then if I look at the two major concepts which I am going to deal about today, is about the risk organization within the bank. I am not going to talk on risk identification measurement because that will follow in subsequent video. One is the risk management structure and risk organization. Now the two things which I am going to talk to you. In any bank, every board formulates a policy, whether it is credit, whether it is recovery, whether it is products, whatever. Board drafts the policy. Actually, drafting is done by the executives, maybe CEO and the people who report to him. They draw a policy which is approved by the board. But legally, it is the board which draws the policy. Let us understand the legal difference. Executive CEO are the administrative heads. So administratively, they are supposed to implement the decisions of the board. They are not the decision maker. Decision maker is always the board. So the Reserve Bank of India always says that board has to form a policy. तो बोर्ड कैसे फॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे बोर्ड में सब all walks of life people are there. But you as a CEO, you as an officer in the bank, you are the key person. You have a formal education in banking. Therefore, it is expected that you form all the policies, get the same discussed in the board meeting, record the same, and circulate the policy amongst the bankers. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? Risk organization in any bank is incomplete unless a part of management and part of administration come together, join hands. So you have a few members of the board and few members of the executive. These two group, I mean, let us assume that you have a chairman, vice chairman, and a director. You have CEO, DGM, and AGM. 6 people. These 6 people are the people who drive the risk practices within the bank, whether written or otherwise. These 6 people are the key people who actually draw down various policies. Now, risk organization presupposes, we assume करता है कि तुम्हारा टॉप मैनेजमेंट एंड सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए. अभी ये टॉप मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट इंटरचेंजेबली भी यूज होता है. सफाइस इनफ टू अंडरस्टैंड दैट 3 बोर्ड के बंदे और 3 एग्जीक्यूटिव्स के बंदे, 6 बंदे हो गए. ये 6 बंदों को क्या करना है? एक साथ आना है. उसको पॉपुलर नॉमेनक्लेचर क्या है? रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. मैं ये मान के चलता हूं कि आपका चेयरमैन, आपका वाइस चेयरमैन या डायरेक्टर may not be an expert banker, but banking is logic. So all these directors think on logic, based on which various policies are formed. So when we are talking about a risk management organization, there are some other concepts. One of the concept is whether the risk management practices in any institution should be centralized or decentralized. Indian experience is that it is centralized. In almost all banks, it is centralized. So it's a top bottom approach in risk management. So risk policies जो आपकी होगी, practices जो होगी, वो टॉप में फॉर्म होगी. कौन करेगा? ये जो आप रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाओगे, ये करेगा. एग्जीक्यूट कौन करेगा? वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स, वेरियस ब्रांचेस, वेरियस ऑफिसर्स, various employees. They will have to work within the policies which have been formed in respect of risk management also. So the risk management organization can be a top center, top to bottom. Typically हर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप नॉलेज की बात करोगे तो आपको वो पिरामिड दिखेगा, where the knowledge is at the top and then bottom of the pyramid is actually where the execution takes place. और ये जो एग्जीक्यूशन होता है, ये टॉप के जो पॉलिसीज है वो नीचे वाले बंदे एग्जीक्यूट करते हैं. सो द रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट वर्ड, a well-defined structure wherein there you have a risk management committee and you have risk policies. Risk management committee is basically formed to give final shape to the risk policies and practices. As also,
risk identification, risk mitigation, risk assessment, risk measurement, risk avoidance. All these things are implemented through this particular risk management organization, which starts from the risk management committee of the bank. तो पहली चीज ये होगी कि आपको पहले रिस्क मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म कर लेना चाहिए। और ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जब जब आप फॉर्म करोगे, जब आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, तब ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने क्या सोचना है? सोचना ये है कि हमारा जो बिजनेस है, वो बिजनेस हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? सिंपल वजह है, आप गलत काम नहीं करते हो, आप रिस्क नहीं लेते हो, या लेते भी हो तो भी उसका असेसमेंट करते हो, उसका मेजरमेंट करते हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है। सो द रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग विच कमेंसेस एट द टॉप। अगर तुम्हारे बोर्ड का इसमें कमिटमेंट नहीं है, बोर्ड बोलता है क्या करने का, इतने दिन कभी किसी ने पूछा नहीं, अब क्या ये नया झमेला आप लेके आए हो और हमको काम काम पे लगा रहे हो। एक बात उनकी एक हद तक सही है, लेकिन जो अभी दिन बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रही है, बैंकिंग टफ हो रहा है, रेगुलेशन टफ हो रहा है, और रेगुलेशन इस तरह से टफ हो रहा है कि रिजर्व बैंक किसी की सुनती नहीं है। तो जो रिजर्व बैंक कहती है उसके ही पैरामीटर्स में आपको काम करना है। तो वो काम करने के लिए जो पॉलिसी पैरामीटर्स आपके बन रहे हैं, उसमें से हम बिजनेस कैसे करोगे? बैंक को गड्ढे में डाले बगैर, बैंक को गड्ढे में नहीं डालना है। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल इंश्योर, क्योंकि रिस्क प्रैक्टिसेस, रिस्क थियरी, its application will differ from institution to institution, whether it is a small bank or a very big bank. Its dimension will differ for each bank. So each bank will have to have its own policies depending upon the appetite, risk appetite, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके पास किया था। तुम्हारा रिस्क एपिटाइट क्या है, वो रिस्क एपिटाइट के ऊपर तुम्हारी रिस्क पॉलिसीज बनेंगी। हर एक एक्टिविटी में, बैंकिंग के हर एक एक्टिविटी में रिस्क इन्वॉल्व है। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये एक्टिविटीज क्या है, हमारे बंदे क्या काम करते हैं, और उनकी किस गलती से हमें झटका लग सकता है। झटका कैसे लगता है? सिंपल, मिनिमम बैलेंस चार्जेस में आपके बंदों ने गलती कर दी, 2 लाख का फाइन हो गया। ये ऐसा है, न खाया न पिया, ग्लास सोडा बाहर आना, आपने कुछ नहीं किया, टॉप में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो बंदे नीचे काम करते हैं उनको सही रास्ते पे नहीं रखा। जैसे कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, उसका इंप्लीमेंटेशन अगर ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, बैठे बैठे पेनल्टी आ जाती है, बैठे बैठे, कुछ नहीं किया आपने। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इसलिए है कि इट विल हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क। 10-15 प्रकार के रिस्क है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 7-8 प्रकार के रिस्क है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना, मेजर कैसे करना, मिटिगेट कैसे करना, ये सब मैं अब आने वाली वीडियो में आप सबको बताऊंगा, वो including couple of technical things which are actually technical, but they are not so difficult to understand. अगर आपको समझ में आ गया तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ड्रॉ करना आसान है। सो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, तुम्हारे बैंक में रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से काम करेगा, और रिस्क ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तुम्हारा हायरार्की, हु इज फिट वेयर इज योर CRO, what is the role of your members of the board, what is the role of your key members who are into this risk organization. This is within the bank, there is interchangeability. वही बंदा दूसरा काम भी करेगा, वही बंदा ये भी काम कर सकता है। अनलाइक कॉम्प्लायंस वेयर रिजर्व बैंक कहती है कि ड्यूअल हैटिंग इज नॉट परमिटेड, यानी एक बंदा दो काम नहीं करेगा। रिस्क के बारे में उनके गाइडलाइंस ही नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा 30 साल पहले कमर्शियल बैंकों को रिस्क मैनेजमेंट की गाइडलाइंस दी, उन्होंने 20 साल ऐसे ही गंवा दिए। आज रिजर्व बैंक हाथ धो के उनके पीछे पड़ी है, हमारे पीछे नहीं पड़ी है। हमारे अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके एसेट बेस 5,000 करोड़ के ऊपर है, उनके पीछे पड़ी है। कल आपकी 100 करोड़ की बैंक है, 500 करोड़ की बैंक है, आपके पीछे लग सकती है। तो ये प्रैक्टिसेस जिसको हम कहते हैं कि गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ये रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट होती है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको आप जो कर रहे हो उसको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, उसको पॉलिसी में कन्वर्ट करना है, उसको राइटिंग में कन्वर्ट करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्टार्ट्स विथ योर रिस्क कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, एंड दिस रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, हु एल्स इज इन्वॉल्व्ड?
ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंटल हेड, वो क्रेडिट का हो, रिकवरी का हो, आईटी का हो, all departmental heads, because all these departments create risk which enter in your books, and if not managed you face losses. ऐसा है, रिस्क लोगे तभी तो प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क लोगे तो बैंक को बंद करके छोड़ोगे। और इसीलिए उसका मेजरमेंट, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका लोकेशन, उसका सिचुएशन, आप इमोशनल बैंकिंग नहीं करोगे। इमोशनल बैंकिंग क्या होता है, हम उसको ये 20 साल से जानते हैं, एक्सपोजर लेने में क्या मतलब है। नो, दैट इज नॉट द मेथड इन विच यू शुड बी टेकिंग एनी डिसीजन। द मेथड इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एंड this risk management organization will tighten you internally, will not let you do certain things which are not acceptable for the risk appetite which your board has approved. मैंने कहा था 2 या 3 संडे पहले, रिस्क एपेटाइट इज अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। इट्स अ डॉक्यूमेंट विच द बोर्ड हैज टू ड्रॉ कि हमारी ताकत क्या है। तो वो लिखने के बाद में ताकत आपने लिख दी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका 10 करोड़ का एक्सपोजर है, आप 8 करोड़ के ऊपर जाते नहीं हो, देयर इज अ थंब रूल, यू हैव केप्ट सम मार्जिन। कुछ बैंक ज्यादा मार्जिन रख सकती है, कुछ बैंक कम मार्जिन रख सकती है। ये मार्जिन क्यों रखना है? क्योंकि टॉप एंड केस में अगर आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट है और उसके चेक लग गए, चेक आपने पास कर दिए, वायलेशन ऑफ एक्सपोजर नॉर्म्स, बैठे बैठे बिना कुछ सोचे घुस गया रिस्क। एंड इट इज देयरफॉर दैट इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड that each of our action, every action that we undertake has a reaction. Your action of sanctioning loan is creating a risk. आप बोलोगे यार फिर तो हमको धंधा ही बंद करना पड़ेगा। No, that's not the case. The case is understand it and take it. Understand it and take it. And what saves you, let me tell you, many urban cooperative banks are very poor. Poor in terms of appraisal, poor in terms of assessment of borrower, poor in terms of assessing the need of the borrower. अकाउंट जब एनपीए होता है ना, तो there is only one thing that happens in banking industry, that is investigation of staff accountability. What about the investigation of director's role in sanctioning the loan? थोड़ा मिर्ची लगने वाला है, लेकिन जरूरी है, जरूरी है। और इसीलिए रिजर्व बैंक क्या कहती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर एस्टैब्लिश हो गया पेनल्टी हो जाएगी। अगर क्रेडिट केस में अगर किसी डायरेक्टर बंदे को इंटरेस्ट है, ही शुड स्टे अवे फ्रॉम द डिसीजन एंड क्रिएट अ रिकॉर्ड दैट आई वाज इंटरेस्टेड एंड आई हैव स्टेड अवे फ्रॉम द डिसीजन। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। ऑल दीज एक्शंस आर रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्क स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोर्ड। Maybe not entire board is required to be involved. 3 or 4 people from the board of directors, 3 or 4 people from the एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी। आप मुझे पूछेंगे कि वो बीओएम का कोई बंदा लेने की जरूरत है कि नहीं? बीओएम इज अ रिकमेंडेटरी अथॉरिटी, बोर्ड इज अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। आप बीओएम में कंसल्ट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में तुम्हारे डायरेक्टर्स होने चाहिए, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, दोज हु आर अकाउंटेबल। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो पहले रिस्क कमेटी होगी जिसमें मेंबर्स ऑफ द बोर्ड होंगे, तुम्हारा सीईओ होगा और ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स, इन्वॉल्व ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स। अब ये मिलके क्या करेंगे, अगले वीडियो में बताऊंगा इनको क्या करना चाहिए। आई टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू 15 एपिसोड सीरीज। 4 हो गए, इसके बाद भी मैं 15 कह रहा हूँ, क्योंकि नॉट ए इजी सब्जेक्ट टू टीच। There are several YouTube videos available on risk management, but nobody will teach you what I am going to tell you. I am going to give you the secret of doing it professionally. Risk management, do it professionally. आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, विचार अच्छे लगते हैं, तो
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों परिवारों में शेयर कीजिएगा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग में काम करते हैं। अच्छा लगता है आप जब पॉजिटिव रिएक्शन देते हो तो बहुत आत्मबल मिलता है, बहुत उत्साह मिलता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ it's good for the industry. That's the intention. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much.